Okay, so I quickly revise our first definition, and today we'll see some examples on definition 2 and definition 3. Okay, so let us continue this part. Okay, so so can anyone tell me what is the actual definition of beta function, or the first definition of beta function? Yes, what is the definition of beta function? C raised to n 1 minus t raised to n Just let me 0 to 1. increase the volume. Yes, can you repeat? Yes, can you repeat? Integration from 0 to 1. 0 0 0 to 1, then T raised to n raised to 1 1 minus t minus raised 1. to just a 1 minute, let me add. Correct, t raised to m, and then 1 minus t raised to some n dt, that is nothing but beta of m comma n. So this is your actual definition. Okay, and this second definition, integration from 0 to infinity. n plus 1, n plus 1. Sorry, yes, plus 1 plus 1. Okay, so this is your first definition, and here this second form, okay, you will get from this actual definition itself. Okay, इसके बाद जो भी definitions आप देखने वाले हो under this beta function, all those definition, okay, you will get it from this actual definition. Okay, for example, here if I just put x t is equal to x upon 1 plus x, just let me check whether this substitution will work or not. Okay, so can I get this form, ये मुझे चेक करना है. मैं बस आपको हिंट देने वाला हूँ, दिस प्रूफ इज नॉट देयर इन योर सिलेबस. आपको मैंने कल भी बोला था कि ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, तो हमको डायरेक्टली यूज करना है, बट जस्ट कि कैसे ये सब कुछ आपको मिल रहा है, मतलब हाउ यू गेट दिस डिफरेंट in this beta function, that only I will explain here. Okay, so to convert this integration from 0 to 1 t raised to m 1 minus t raised to n dt, in terms of this we have to use this substitution. Okay, let me check whether it is correct or not. Okay, so t equal to this, मैं क्या काम करता हूँ, इसको x में लिखता हूँ तो आपको जल्दी से समझ में आएगा. So 0 to 1 x raised to m 1 minus x raised to n dx is equal to, this is my actual definition, beta of m plus 1 comma n plus 1. अभी यहाँ पे ये beta of m comma n में, so it's better to consider here m minus 1 n minus 1, then here you will get beta of m comma n. ठीक है, तो ये आपको पता है, ये चेंज आप इजीली कर सकते हो. ठीक है, सो हियर आई कंसिडर नाउ beta of m comma n. नाउ अभी RHS में तो आपको सेम फॉर्म मिल रहा है, RHS मैचिंग विद दिस, है ना. मुझे कैसे भी LHS को, सो हियर इन दिस, सो दिस LHS वी हैव टू रिप्लेस बाय दिस. ठीक है, या दिस 0 to 1 इंटीग्रल वी हैव टू कन्वर्ट इनटू 0 to infinity इंटीग्रल. तो बेसिकली आपको क्या करना है, 0 to 1 इंटीग्रल को 0 to infinity में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए सो कैन आई टेक दिस एज माई सब्स्टिट्यूशन, x इज इक्वल टू t अपॉन 1 प्लस टी. लेट अस चेक दिस. ठीक है, सो तो यहाँ पे x के लिमिट्स क्या है, इस केस में x के लिमिट क्या है, 0 to 1. मुझे किस में कन्वर्ट करना है, 0 to infinity में कन्वर्ट करना है. सो व्हेन आई पुट x इक्वल टू 0, t की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. सो 1 प्लस टी, है ना, या यहाँ से मुझे t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस आई विल गेट x प्लस टी एक्स इज इक्वल टू t, है ना. So that gives me Someone is waiting. yes, Someone is waiting, sir. okay, so if I calculate the value of t from this equation, the value of t is what, x upon x minus 1. ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट कैलकुलेशन. ओके, तो मैंने क्या किया, हियर इन दिस इंटीग्रल आई कंसिडर x इज इक्वल टू t अपॉन 1 प्लस t. ठीक है, नाउ आई हैव टू चेक वेदर दिस सब्स्टिट्यूशन गिव्स मी
this limits or not, 0 to infinity limits or not, that I have to check. Okay, so if I put x equal to 0 here, now you can check this relation. यहाँ से मैंने t की वैल्यू कैलकुलेट की है. So when I put x is equal to 0, that gives me what? t की वैल्यू क्या आएगी when I put x equal to 0? हाँ, 0, क्योंकि न्यूमरेटर 0 है ना. So that gives me 0. And if I put x equal to 1 here, what is the value when I put x equal to 1? इन्फिनिटी आ रहा है ना, आप देखो 1 upon 1 minus 1 0, that gives me infinity. ओके, तो ये जो फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज मतलब ये बेसिकली आपकी ये गिवन डेफिनेशन ही है. जस्ट बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मैंने इसको चेंज किया. इज इट क्लियर नाउ? दिस प्रूफ इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, आपको कुछ इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट दिस इज दी मतलब यूजिंग दिस मेथड यू विल गेट दिस सेकंड फॉर्म. This you can say directly second or deduction of this actual definition. Is this clear now? समझ में आ रहा है ये क्यों आपको मिल रहा है? हाँ, उतना मतलब उतनी इन्फॉर्मेशन आप रखो कि ये आपकी कोई एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, ये हमने यहाँ से ही कैलकुलेट किया है. ठीक है, जस्ट बाय टेकिंग दिस सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू टी अपॉन 1 प्लस टी. मैंने बस आपको लिमिट का पार्ट शो किया है. ओके, व्हाई दिस लिमिट 0 to 1 चेंजेस टू 0 to infinity. ओके, ओनली दैट पार्ट आई शोन हियर, बट if you actually perform this calculation you will get directly this form. Okay, and that calculation is not difficult. ठीक है, but I will not go in detail about that part, that you can directly refer. Okay, yeah. So just let me give this part in a short way and then we'll take some examples on this second definition. Okay. Just 1 minute, where is this? Yeah. Okay, so what is your definition? Integration 0 to infinity, yes, x raised to m minus 1 upon 1 plus x. Stop a minute. Let me adjust. Yeah, upon 1 plus x, 1 plus x raised to m plus n dx, and that gives me बीटा ऑफ m कॉमा n. ये आपकी सेकंड डेफिनेशन है. अभी बस आपको इसको याद रखना है. ठीक है, नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस डेफिनेशन ओनली. और मैंने आपको कल के लेक्चर में ये भी एक्सप्लेन किया था कि इसके ऊपर जो एग्जांपल्स आते हैं वहाँ से ये m and n कैसे कैलकुलेट करना है. तो जो x की पावर है ना, उसमें बस +1 ऐड करो, दैट गिव्स यू द फर्स्ट नंबर, है ना. 8 plus 1 gives you 9, and now subtract this 9 from this base power 1 plus x की जो power है. Okay, from that number you have to just subtract this 9, then you will get that n, है ना. So in this way you can directly calculate this m comma n. Okay, now how you get this? Okay, so to convert मैं बस हिंट में आपको दे रहा हूँ. Okay, to convert this definition, integration from 0 to 1, x raised to m minus 1 minus x raised to n minus 1 dx is equal to beta of m comma n. To convert this integral into, let us call equation 1. Okay, into equation 1 use following substitution. This is just for your information. ठीक है, so what is that substitution? Just put x is equal to t upon 1 plus t. Okay, no need to prepare this for exam, क्योंकि एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले. Okay, that but अगर आपको कुछ इंटरेस्ट है तो you can check this why I get this second form. Okay, now let us take some examples on this. Okay, examples on this second definition. Question 1, evaluate, just 1 minute, evaluate integration from 0 to infinity. Okay, x raised to 8 minus x raised to 5, okay, upon 1 plus x cube raised to 5 dx. ओके, इससे पहले एक और पार्ट मुझे एक्सप्लेन करना था. हाँ,
नाउ हाँ दिया है शायद मैंने, हाउ यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑन दिस सेकंड डेफिनेशन, कौन से टर्म पे आपको फोकस करना है कि वो टर्म अगर वहाँ पे प्रेजेंट होता है उस इंटीग्रल में, इफ दिस टर्म इज प्रेजेंट इन योर गिवन इंटीग्रल, देन यू हैव टू, देन इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली, यही फॉर्मूला आपको वहाँ पे यूज करना है। तो ये मैंने दिया है, ओके, इफ गिवन इंटीग्रल कंटेन दिस टर्म कांस्टेंट प्लस, अभी दोनों में फर्स्ट और सेकंड डेफिनेशन में बस इतना ही डिफरेंस है, फर्स्ट डेफिनेशन में भी ये सेम टर्म था बस यहाँ पे माइनस साइन था, अभी सेकंड डेफिनेशन में भी सेम टर्म है बस यहाँ पे प्लस साइन है, ओके। सो इफ गिवन इंटीग्रल कंटेन दिस टर्म देन यूज डेफिनेशन 2, ठीक है। सो ये भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, यू हैव टू फोकस ऑन ओनली दिस टर्म। सो इफ यू आर गिवन इंटीग्रल कंटेन दिस टर्म कांस्टेंट प्लस x रेज टू सम पावर एंड होल ब्रैकेट रेज टू सम पावर, इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस सेकंड डेफिनेशन, ओके। नाउ विद दैट सेम रेफरेंस कैन यू टेल मी व्हाई वी हैव टू सॉल्व दिस एग्जांपल यूजिंग द सेकंड डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, कौन से टर्म से आपको ये समझ में आता है यहाँ पे? यस, डिनोमिनेटर 1 प्लस, अब ये कहीं पे भी आएगा, ओके, दिस ज्यादातर आपको पता है नीचे ही आता है, बट इफ दैट गिवन इंटीग्रल कंटेन अ टर्म लाइक कांस्टेंट प्लस x रेज टू सम पावर एंड होल ब्रैकेट रेज टू सम पावर, ओके, इन दैट केस वी हैव टू सॉल्व दिस एग्जांपल बाय द डेफिनेशन 0 to infinity x रेज टू सम पावर, ओके, देन 1 प्लस x रेज टू m प्लस n dx, okay, and which is equal to what? Beta of m comma n. So if that given integral contain this term, then this is our approach, okay. Now let us discuss this example. बोलो क्या करना है, क्या करना होगा, और what is your flow, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे? Tell me the first step. What is the first step of this integral? और what is your first step of simplification? क्या कर सकते हो आप इसमें पहले? Sir, x raised to 5 common. No, that you can take, but whether that simplify the thing. So split. So can we split or can we H2. separate that integral with respect to minus sign? Can we do that? क्योंकि पहले ऊपर Yes, से sir. फॉर्म एडजस्ट कर लेते हैं ना जो दिखाई दे रहा है इंटीग्रल में। So this can be written as, so this given integral is equal to integration from 0 to infinity. Now I will separate this integral with respect to minus sign, okay. This is the rule of integration, you can separate the integration with respect to addition, with respect to subtraction, so that is allowed. So x raised to 8 upon 1 plus x cube raised to 5 dx plus integration from 0 to 8, sorry minus है ना, Yes, sir, minus. we give that minus sign as it is, yeah, x raised to 5 upon 1 plus x cube raised to 5 dx, okay, ठीक है। अभी दो इंटीग्रल में वो रिप्रेजेंट हो रहा है, ओके, बट लेट इट बी, बट नाउ एट देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस ईच इंटीग्रल, ये दोनों, इन दोनों इंटीग्रल को आपको इसमें ही तो कन्वर्ट करना है, x रेज टू m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू m प्लस n। अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, सारे टर्म्स मैच हो रहे, बट बस एक ही टर्म में प्रॉब्लम है। व्हाट इज दैट टर्म? कौन से टर्म में प्रॉब्लम है? x क्यूब में प्रॉब्लम है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज योर सब्स्टिट्यूशन? 80. X to be equal to t. इसके जगह पे एक सिंगल वेरिएबल चाहिए ना, जैसे यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, सो हियर आई विल पुट x क्यूब इक्वल टू t, व्हाई? जस्ट टू कन्वर्ट दिस इंटीग्रल इनटू दिस फॉर्म, okay. So put x cube equal to t, that gives me x is equal to t raised to 1 by 3, ठीक है, that gives me dx is equal to n x raised to n minus 1, so that gives me minus 2 by 3 dt, okay. Also you can check your limits, x के लिमिट्स क्या है और t के लिमिट्स क्या है, so let me check that, yeah, the limits of x in both cases, ये मैंने कॉमन रखा है दोनों केसेस में, okay. So x changes from 0 to infinity. So when I put x equal to 0, t is 0. You can check from this equation. And when I put x equal to infinity, t is also infinity. So दोनों केस में वो भी सेम आ रहा है. Now you can write the given integral. So given integral is equal to. Now let me just put all these values for this first integral.
So limits will be same, 0 to infinity, 0 to infinity. Now tell me what is value of x raised to 8? T raised to T 8. raised to 8 by 3. T raised to 8 by 3, good. Divided by what? 1 plus t raised to 5 and dx की वैल्यू क्या है? 1 by 3 t raised to minus 2 by 3 dt. This is all about the first. In a similar way, integration from 0 to infinity. Yes, what is value of x raised to 5? T raised to 5 by 3. T raised to 5 by 3. Denominator part will be same, 1 plus t raised to 5, 1 by 3 t raised to minus 2 by 3 dt. Okay, now this 1 by 3 is the constant, तो मैं इन दोनों टर्म से डायरेक्टली बाहर ही लेता हूँ. Okay, as this 1 by 3 is constant, then I will write in whole bracket. First integral is integration from 0 to infinity. Okay, बोलो t raised to 8 by 3 minus 2 by 3 क्या आएगा ये? 2. T raised to 2 whole divided by 1 plus t raised to 5 dt minus integration from 0 to infinity t raised to 5 by 3 t raised to minus 2 by 3. Yes, t raised to 1. So t upon 1 plus t raised to 5 dt. Now here you can see, so this whole integral, okay, this first and second integral, okay, this both integral now get converted into beta function. ये बीटा इंटीग्रल है और बीटा इंटीग्रल ही है ना. t रेज टू सम पावर 1 plus x रेज टू सम पावर, t रेज टू सम पावर 1 plus x रेज टू सम पावर. Now you can directly write or you can directly replace this integral by the beta function now. So 1 by 3 as it is. Okay, now can you tell me what is the first integral in terms of beta? मैंने आपको हिंट दी थी कैसे इसको लिखना है क्विकली. e की पावर है उसमें प्लस 1 ऐड करो 3 and subtract from 5 1, 3, come on. and minus what about next? T top 2. 1 plus 1 2 और 5 से subtract करो 3. हाँ, और ये क्या आपको क्या देगा वैल्यू? What is relation between beta of 3, 2 and 2, 3? Both are equal because beta of m, n. Same. हाँ, same because beta of m, n is equal to beta of n, m and that gives me 0. ठीक है? Okay, this is our first question. Let us take the one more question. Question number 2. Okay. ऐसे ही आते ज़्यादातर. So evaluate integration from 0 to infinity x raised to 8 1 minus x raised to 6 and whole divided by 1 plus x raised to 24. ठीक है, dx. ओके, बोलो इनको समझ में आ रहा है. कैन डायरेक्टली स्टार्ट टेल मी द फाइनल आंसर. 1 plus x. ओके, यस. इन सॉल्यूशन पहले क्या करना होगा बोलो. अगेन व्हाई वी हैव टू सॉल्व यूजिंग बिट. ओके, सो मल्टीप्लाई एंड सेपरेट. So this given integral is equal to what? Tell me that first integral 0 to infinity क्या आएगा यहाँ पे? x raised to मल्टीप्लाई सेपरेट करो बोलो. 8. x raised to 8 upon 1 plus x raised to 24 dx minus integration from 0 to infinity. Now tell me this. X raised to what? X raised to 14. Very good. 14. X raised to 14 upon 1 plus x raised to 24 dx. Now can I directly write the corresponding beta function here? Yes sir. Yes, ये क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्ट मतलब ये डायरेक्टली बीटा फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, कुछ सब्स्टिट्यूशन से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. सो दिस गिव्स मी बीटा ऑफ व्हाट? 9 and 15. हाँ, एंड 24 से 9 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 15 माइनस सेम सॉरी फॉर दिस नेक्स्ट 15. 16 sir. Yes sir, बराबर. 15 and 9. 24 at the end you have to match. ठीक है, सो हाँ करेक्ट. सो 14 plus 1 15, subtract 15 from 24 you will get 9. And what is this? 9 15 0. 59.
0। ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आने के चांसेस भी ज़्यादा है, ठीक है। ओके, एक और दे देता हूँ मैं आपको, और 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, दोनों में से कोई भी किया तो भी चाहिए बेटे। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity x raised to 8 upon 1 plus x raised to 6 raised to 7 by 2 dx. Let's do this. Okay. So again, why we have to solve using beta function? Because of this denominator term constant plus x raised to some power and whole raised to some power. इतना बस याद रखो, ये टीच करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको कहीं से भी ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको जो इन बिटवीन ट्रिक दे रहा हूँ ना कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो आप उस ट्रिक से याद रखते हो ना। तो अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, कहीं पे मैं मतलब एक बार आपको लॉजिक क्लियर होता है ना मैथ्स में, तो फिर आपको ज़्यादा कुछ उसमें प्रिपरेशन नहीं आता। आप कभी भी मतलब प्रॉब्लम देख के भी आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो अभी भी मैं जितने भी लेक्चर्स ले रहा हूँ, मैं कहीं पे मतलब बुक से प्रॉब्लम देख के ऐसा कुछ नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। उस हिसाब से आप प्रिपेयर करो, तो है ना, मतलब फाइनल एग्जाम के लिए भी आपको ऐसा कोई ज़्यादा प्रिपरेशन होगा नहीं। अगर आप एक 3-4 फॉर्मूलेज भी याद रखते हो ना, तो भी आपको उसमें पता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। सो मैथमेटिक्स में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्योंकि ज़्यादा मेमोराइज आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको किसी ना किसी लॉजिक से, किसी ना किसी ट्रिक से यू नीड टू रिमेंबर ऑल दोज रिजल्ट्स, ठीक है। ओके, सो नाउ इन सॉल्यूशन, so again constant plus x raised to some power, because of that we have to solve using beta function. So अभी beta function में convert करने के लिए, okay, what is our substitution? x raised to 6 equals to t. कि सारे टर्म्स मैच हो रहे, इसके जगह पे आपको एक t चाहिए था, so just put x is equal to 6 is equal to t, that gives me t is equal, sorry, that gives me x is equal to t raised to 1 by 6. That gives me dx is equal to n, okay, x raised to n minus 1. What is that? N minus 1 is minus 5 by 6, n x raised to n minus 1 dt. And now check your limits, है ना, x के लिमिट्स और t के लिमिट्स। x के लिमिट्स है 0 to infinity, when I put x equal to 0, t is 0. When I put x equal to infinity, t is infinity. Now you can write the given integral. So given integral is equal to, limits will be same, 0 to infinity, 0 to infinity. What is value of x raised to 8? बोलो, what is value of x raised to 8? Correct ना? हाँ, x raised to 8. तो 8 into this, 8 into 5, okay, and divided by what? 6. So what is that? हाँ? minus 20. t raised to what? minus 20 by 3. minus 40 by 6, ठीक है। तो ये सॉल्व होगा, बट चलो अभी इसको लिख लेते हैं ऐसे। सॉरी मैंने गलत लिखा, ये माइनस क्यों लिखा? हाँ, मैंने वो आगे का देखा, जस्ट 1 मिनट, सॉरी, हाँ, ओके, हाँ, 8 by 6 ना, ये x की वैल्यू है ना, x इक्वल टू t raised to 1 by 6, सो जस्ट x raised to 8 बिकम 8 by 6, ओके। सॉरी, ये मैं देख रहा था, तो बिकॉज ऑफ दैट इट्स ग्रेटर कंफ्यूजन, ओके। सो इट्स ट्रिवियल, t raised to 8 by 6, ओके। नाउ 1 plus t raised to 7 by 2, एंड dx की वैल्यू क्या है? 1 by 6 t raised to minus 5 by 6 dt. Now let's do this quickly. So 1 upon 6, 0 to infinity. Yes, what is the final power of t? बोलो, 1 by 2. है ना। So 8 minus 5, 3. So that gives me 1 by 2. Other student, okay, is this clear to you or not? ये समझ में आ रहा है कैलकुलेशन? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So 1 by 6. Now tell me in terms of beta. बोलो, 3 by 2 into 3 by 2. 3 by 2, comma 1 by 2. 7 by 2 में से आपको 3 by 2 सब्ट्रैक्ट करना है, so that gives me what? So 2, ठीक है। हाँ, so finally
अब इसके आगे आपको सॉल्व करना होगा। प्रीवियस दोनों एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, वो 0 आ रहा था, है ना, तो हमने आगे बीटा सॉल्व नहीं किया था, बट यहाँ पे हमें बीटा सॉल्व करना होगा। सो 1/6, यस, टेल मी दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गामा। हाँ, 3/2 इंटू गामा ऑफ 2 डिवाइडेड बाई गामा ऑफ देयर एडिशन। एडिशन क्या आएगी, 3/2 प्लस 2, 3/2 प्लस 2 7/2। अभी मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये अगर मैं एडिशन में लिख लेता हूँ तो एक और स्टेप इंक्रीज हो जाएगी, अरे आपको अवॉइड ही करना है, आप साइड में करके, और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है। सो 1/6, व्हाट इज वैल्यू ऑफ गामा ऑफ 3/2? प्रीवियस नंबर क्या है, 1/2, और जैसे ही 1/2 आता है उसके आगे रूट पाई लिख लेना है, ओके। हाँ, गामा ऑफ 2 इज 1 फैक्टोरियल, सो इट गिव्स मी 1 ओनली, ठीक है। 7/2 क्या आएगा, गामा ऑफ 7/2 5/2, उसके पीछे का नंबर 3/2, उसके पीछे का नंबर 1/2, और जैसे 1/2 आता है रूट पाई, सो दिस विल कैंसिल विद दिस, एंड बोलो व्हाट इज द फाइनल आंसर, व्हाट वी हैव टू राइट? हाँ, व्हाट इज द फाइनल आंसर? बाय 45, ठीक है, 45. हाँ, यू कैन वर्क फॉर दिस। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। एंड द लास्ट एग्जाम्पल ऑन दिस इंटीग्रेशन, सॉरी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity x raised to n minus 1 upon a plus bx, a plus bx raised to m plus n dx, ठीक है। हाँ, बोलो, इसको भी मुझे बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे ये इंटीग्रल ऐसे चाहिए, 0 to infinity x raised to m minus 1 upon 1 plus x raised to m plus n dx, so that I will get here beta of m comma n, ठीक है। बोलो क्या होगा मेरा सब्स्टिट्यूशन, पुट व्हाट, b raised to x equals to 80. b करेक्ट बोला था आपने, b रेस्ट टू x ऐसा कुछ तो वर्ड आया था, तो इसलिए मैं फिर से पूछ रहा हूँ। B raised to x is equal to 80. b raised to bx इज इक्वल टू 80 बोल रहे हो क्या आप? नहीं सर, Raised to. ये रेस्ट टू है ही नहीं, ओके, हाँ हाँ, सॉरी, तो पहले मैं वो करेक्ट कर देता हूँ, लेट मी राइट इट अगेन। हाँ, तो मैं सोचूं, हाँ, सो दिस प्रॉब्लम इज लाइक दिस, x रेज टू n minus 1 अपॉन a plus bx, b रेज टू x नहीं है, a plus bx रेज टू m plus n। नाउ यू टेल मी, मुझे ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है उसकी जगह पे 1 plus t लेके आना है, और ये आपने किया है, जो लॉजिक आपका था ना a प्लस, उसमें वही लॉजिक है यहाँ पे। टेल मी योर सब्स्टिट्यूशन। आप मुझे ये बोलो, a माइनस b, सॉरी, a माइनस एक्स रेस टू m रेस टू n, ये फर्स्ट डेफिनेशन थी, इसको आपको 1 माइनस एक्स में कन्वर्ट करना था, तो आप क्या करते थे, इसको 1 माइनस एक्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते थे, X raised to m is equal to 80. करेक्ट। सेम लॉजिक यूज करके कैन यू टेल मी फॉर दिस, अभी मुझे इसको 1 plus t में कन्वर्ट करना है, ये माइनस तो ये सेम ही है ना, तो माइनस का इतना कुछ रोल है ही नहीं, प्लस आता तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस आता तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो कैन यू टेल मी फ्रॉम दिस क्या करना होगा मुझे, 1 a plus bx को मुझे कन्वर्ट क्या करना है, लेट मी जस्ट राइट हियर, तो आपको समझ में आएगा व्हाट आई वांट हियर। मुझे क्या चाहिए, a plus bx के जगह पे मुझे 1 plus t चाहिए, ओके, जस्ट टू कन्वर्ट इट इनटू बीटा फंक्शन। सो व्हाट इज माय सब्स्टिट्यूशन, Bx is equal to 80. 80, वेट गुड, ओके, ये भी 1 मार्क के लिए सेपरेट आपको आ सकता है। सो दैट गिव्स मी x इज इक्वल टू t 80 upon b, okay, हाँ, a by bt, and that gives me dx is equal to a by b
into dt. Okay, let me check the limits. x के लिमिट 0 to infinity है ना, t के लिमिट्स भी क्या यहाँ पुट करो, when x is 0 t is 0, when x is infinity t is infinity. So now we can write the given integral is equal to, limit will be same 0 to infinity x raised to n minus 1. तो क्या लिखना होगा मुझे यहाँ पे, करेक्ट, a raised to n minus 1, ये आपका x है, अपॉन b raised to n minus 1 इंटू टी रेस टू एन माइनस 1. मैंने इसलिए सेपरेट लिखा है, तो आपको कैलकुलेशन करना है इमीडिएटली. एंड दिस इज योर एक्स रेस टू एन माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी एक्स की जगह पे ए टी रेस टू एम प्लस एन एंड डी एक्स की जगह पे a बाई बी इंटू टी. ओके, हाँ, अभी मैं सारे कॉन्स्टेंट्स को बाहर लेके आने वाला हूँ. ठीक है, सो क्या क्या कॉन्स्टेंट से बाहर, ये a रेस टू एन माइनस 1 एंड ये a बाई बी, तो ये कैन आई राइट डायरेक्टली इट एज a रेस टू n अपॉन b रेस टू n. हाँ, और यहाँ से क्या कॉमन आने वाला है बाहर, 1 अपॉन व्हाट, m प्लस n. इन इंटीग्रल यू विल गेट 0 टू इंफिनिटी t रेस टू n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t रेस टू m प्लस n dt. नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, a raised to n cancel with this a raised to n. So what is in the denominator? a raised to m into b raised to n. ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. एंड व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज योर बीटा फंक्शन x raised to n minus 1 upon, हाँ, सो बीटा ऑफ n कॉमा m या m कॉमा n भी आप लिख सकते हो, आपको बता दो बोथ आर सेम. ओके, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको, इसका प्रूफ भी आ सकता है, या द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, ये भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है. स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बट आपको इसका प्रूफ प्रिपेयर करना है, तो इसलिए मैंने लिया है. ओके, सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन 2. इतने एग्जांपल्स से आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. ठीक है, एंड नाउ विल सी दी थर्ड डेफिनेशन, डेफिनेशन 3. थर्ड डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन. Okay, so this definition is like this: integration from 0 to pi by 2, correct, sin raised to, अभी मैं इसमें भी कुछ चेंजेस करने वाला हूँ. दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन. sin raised to 2 minus 1 m theta cos raised to 2n minus 1 theta d theta. ओके, हाँ, इट इज इक्वल टू 1 by 2 बीटा ऑफ m कॉमा n. ओके, करेक्ट लिखा है, हाँ, ठीक है. नाउ दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन. हाँ, अभी ये कैसे आता है वो मैं एक्सप्लेनेशन करना, मैं आपको उसका बस एक्सप्लेनेशन देता हूँ. प्रूफ के अंडर डाल देता हूँ. व्हाट इज अवर एक्चुअल डेफिनेशन? ओके, व्हाट वी नो दैट, जस्ट 1 मिनट, दिस द डेफिनेशन. कैसे आने वाला वो एक्सप्लेन कर देता हूँ क्विकली. सो वी नो दैट integration from 0 to 1 x raised to m minus 1 1 minus x raised to n minus 1 dx is equal to beta of m comma n. अभी आप ही बोलो, मैं बस आपको सब्स्टिट्यूशन की, मैंने आपको पहले क्लियर किया, दिस इज योर एक्चुअल डेफिनेशन. whatever forms you will get or whatever definitions you will get, those all definitions actually calculated from this main definition. Okay, just using substitution you can change the form of this beta function. तो वही हमने प्रीवियस डेफिनेशन में किया था, वही हमें अभी इस डेफिनेशन में भी करना है. सो कैन यू टेल मी what is my substitution, okay, by which I will get this integral 0 to pi by 2 sin raised to 2m minus 1 cos raised to 2n minus 1. So what is my substitution? मुझे क्या पुट करना होगा? What is my substitution? So that I will get this form. Sin square equal to n. हाँ, और जब आप सब्स्टिट्यूशन लेते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है लिमिट का. सबसे मतलब हमेशा पहले लिमिट, मतलब सब्स्टिट्यूशन ऐसा चाहिए जिसमें जब आप x इक्वल टू 0 पुट करते हो ना, जब आप x इक्वल टू 0 पुट करते हो ना, आपको t की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए. जब आप x इक्वल टू 1 पुट करते हो उसके जगह पे आपको पाई बाई 2 आना चाहिए. दिस इज माई सब्स्टिट्यूशन. ये होता है मतलब आइडेंटिफाई करने का अप्रोच. When I put x equal to 0, I must get 0. When I put x equal to 1, I must get pi by 2. या रिवर्स भी हो सकता है, बट एट देन
दिस 0 टू लिमिट्स इंटीग्रल गेट कन्वर्टेड इनटू 0 टू पाई बाय 2। तो पहले इस पे थॉट दो और उसके बाद मुझे x की जगह पे साइन का टर्म चाहिए और इसकी जगह पे कॉस का टर्म चाहिए। सो यूजिंग ऑल दिस थिंग्स कैन यू टेल मी व्हाट इज माय सब्स्टिट्यूशन? वेरी गुड, जस्ट पुट x इज इक्वल टू, अब ये थीटा में है ना, जस्ट पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, दिस सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली कन्वर्ट दिस गिवन इंटीग्रल इनटू दिस, दैट यू कैन वर्क। आप ये आपका होमवर्क है, ये भी मैंने बोला है, इससे स्टैंडर्ड फॉर्मूला प्रूफ नहीं आने वाला और सिंपल, मतलब ये जो प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व करें ना वैसे हम जाने वाले हैं यहाँ पे भी, यानी आपको डायरेक्टली वो प्रूफ समझ में आएगा। सो जस्ट पुट x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। व्हाई दिस वर्क? बिकॉज इफ आई पुट x equal to 0, so tell me the value of theta which gives me sin theta 0, theta equal to 0, therefore this limit is 0. Now when I consider x equal to 1, so tell me a theta which gives me sin square theta equal to 1 pi by 2। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि लिमिट्स तो ये मैच कर रहा है, आगे का पार्ट भी। अभी अब 2m-1 कैसे आ रहा है? बिकॉज ऑफ d थीटा। तो जब आप dx कैलकुलेट करोगे ना तो वहाँ से ये पावर एडजस्ट हो जाएगी। अभी के लिए 2m-2 आएगी यहाँ पे और बाद में वो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दैट यू कैन इजीली वर्क। इट्स अ ट्रिवियल रिजल्ट, ओके, बट मैं ज़्यादा कुछ इसमें इन डिटेल में नहीं जाने वाला। इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप इसको कैसे आगे सॉल्व करते हो। ओके, ये पार्ट कहीं पे भी एग्जाम में नहीं आने वाला एज दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन। बट कोई भी पार्ट आप डायरेक्टली, मतलब एटलीस्ट इतना भी आपको पता होता है कि कैसे वो सब कुछ आ रहा है। ओके, सो दैट रियली हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद ऑल दिस 3 डेफिनेशन। ओके, गुड। सो आपको अभी सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा तो आगे का प्रूफ इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, हाँ, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, फॉर अ कैलकुलेशन पर्पज आई नीड टू चेंज दिस फॉर्मूला। ओके, क्यों चेंज करना है मुझे? क्योंकि आपको पता है पावर कभी 2m-1 के फॉर्म में नहीं आएगी ना, पावर डायरेक्टली नंबर होगा वहाँ पे। तो मुझे इस फॉर्मूले को चेंज करना है। मुझे यहाँ पे साइन रेस टू सम p चाहिए, एक सिंगल वैल्यू, एंड कॉस रेस टू q, एक सिंगल वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो लेट मी राइट दैट पार्ट। जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पज आई एम गोइंग टू चेंज दिस फॉर्मूला। सो फॉर calculation purpose, can you tell me what is value of this integral? Sin raised to p theta cos raised to q theta d theta. Anyone? आप बोलो मुझे क्या लिखना है। ये तो चेंज होगा नहीं, या बोलो। मैंने बस क्या किया है, 2m-1 की जगह पे मैंने p रखा है, 2n-1 की जगह पे मैंने q रखा है। नाउ टेल मी व्हाट वी हैव टू राइट इन दिस ब्रैकेट। p plus 1 by 2. p plus 1 by 2. p plus 1 by 2, very good. And second, q plus 1 by 2. So this formula really helps you while solving the examples, not this. Okay, तो आपने बस क्या किया है, okay, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, ये पावर 2m-1 थी तो उसके जगह पे मैंने p रख दिया है, एंड सेकंड पावर 2n-1 थी उसके जगह पे मैंने q रख दिया है। नाउ यू कैन कैलकुलेट m, तो m की वैल्यू आती है p plus 1 by 2 एंड n की वैल्यू आती है q plus 1 by 2, और वही मैंने रिप्लेस किया। ठीक है, सो दिस इज आवर मेन फॉर्मूला। अब इस पे एग्जांपल्स देखते हैं और बाद में आपको इसके भी कुछ ड्रॉबैक समझ में आने वाले हैं। ओके, इन रिडक्शन फॉर्मूला, तो अभी उस टाइम पे एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी जस्ट फोकस ऑन दिस फॉर्मूला। ओके, एग्जांपल्स, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, अभी इसको आइडेंटिफाई करना ट्रिवियल है। ठीक है, क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस एग्जांपल्स, हाउ टू आइडेंटिफाई। ठीक है, इफ इंटीग्रल कंटेन 0 to पाई बाय 2, या आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐड, क्योंकि साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक में एडजस्ट हो सकता है ना। सो इफ इंटीग्रल कंटेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सो इट्स ट्रिवियल। ओके, सो जस्ट लेट मी टेक फर्स्ट एग्जांपल। अच्छे से लिख लेता हूँ, बाद में आपको ही शेयर करना है। सो एग्जांपल 1, क्वेश्चन 1, इवैल्यूएट 0 to 4, ठीक है, लेट मी टेक अ सिंपल 0 to पाई बाय 2
अंडर रूट ऑफ tan थीटा डी थीटा. दिस इज योर क्वेश्चन. आपको क्या पता है? व्हाट इज आवर रिजल्ट? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 साइन रेज टू पी थीटा, है ना, कॉस रेज टू क्यू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, डोंट फॉरगेट दिस 1 बाय 2, बीटा ऑफ p प्लस 1 बाय 2 कॉमा q प्लस 1 बाय 2. या बोलो अभी क्या करना है इसमें? 1/2 दूसरा tan theta upon cos theta. Okay, just replace tan theta by first. tan theta को किससे रिप्लेस करना है? sin theta upon cos साइन theta. एंड कॉस. सो Sin upon हाँ, तो साइन की पावर क्या आएगी? 1/2 1 बाय 2. एंड कॉस की पावर क्या आएगी? minus 1/2. माइनस 1 बाय 2. तो ये ट्रिवियल है. तो यम पी की वैल्यू 1 बाय 2, क्यू की वैल्यू माइनस 1 बाय 2. टेल मी दिस फाइनल आंसर. बीटा ऑफ व्हाट? 1 बाय 2 प्लस 1, 3 बाय 2 बाय 2. क्या लिखना है? 3/4 वेरी गुड. 3/4. नेक्स्ट, माइनस 1 बाय 2 प्लस 1, 1 बाय 2 बाय 2. 1/4 1/4. ठीक है. एंड कैन वी कैलकुलेट दिस? 1 बाय 2 gamma of 3 by 4 into gamma of 1 by 4 gamma of their addition क्या होगी वो? 1. 1. ठीक है. and how you solve this 3 by 4 and 1 by 4? how you solve this? Pi upon con 2. हाँ, क्योंकि ये अगर आप p लेते हो ना, है ना, so this become 1 minus p. ये इसमें दे रहा है आपको डायरेक्टली एडजस्ट करके. ठीक है. so this gives me pi upon साइन पी पाई. पी की वैल्यू 1 बाय 4 है तो पाई बाय 4. एंड व्हाट इज साइन पाई बाय 4? 1 बाय रूट 2. सो दैट गिव्स मी रूट 2 पाई. ओके, इज दिस क्लियर? Sir 1/2 सर मैं 1/2 छूट गए. पाई बाय रूट 2 ये है. क्या क्या क्या? बरोबर सर. साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या है? अरे हाँ, ये एक रह गया ना 1 बाय 2. हाँ, और कुछ मिस्टेक है? नहीं सर. No sir. साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2 ना? करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग. हाँ, साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2. तो ये ऊपर जाएगा रूट 2 पाई और नीचे ये बाहर का 1 बाय 2. ठीक है. और यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज किया? वो गैमा पी इंटू गैमा 1 माइनस पी का फॉर्मूला. इज इट करेक्ट नाउ? जस्ट टेल मी यस और नो. सर लिमिट का सर देंगे. Yes. क्या हुआ? लिमिट का सर देंगे. 5/2. सॉरी. तो ये राइटिंग मिस्टेक है. तो ओके, बट आप बोलते जाओ क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है. सो आई डोंट वांट टू कीप एनी रॉन्ग थिंग. वेरी गुड. या मिस्टेक्स आप बोलो जो भी हो रहा है ना. 0 टू पाई बाय 2 साइन. ओके, नाउ एवरीथिंग इज करेक्ट. ओके, चलो अब एक और देता हूँ इसमें. लेट मी सेव दिस फाइल. Let me take question number 2 quickly. Evaluate integral from 0 to pi by 2. मैं तो ये देता हूँ d थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन थीटा. बोलो solution. Given integral is equal to integration from 0 to pi by 2. बोलो साइन की पावर क्या है? -1/2. माइनस 1 बाय 2. कॉस की पावर क्या है? 0. है नहीं ना कॉस. सो इफ कॉस इज अपसेंट देन इट्स पावर इज 0. हो गया अपना प्रॉब्लम सॉल्व. ठीक है. सो एंड वी नो द रिजल्ट. दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 बीटा ऑफ व्हाट? दिस नंबर प्लस 1. 1 बाय 2 बाय 2. 1/4. 1/2 करेक्ट. दिस नंबर प्लस 1. सो 0 प्लस 1 by 2. बाय 2. 1 बाय 2. ये होगा क्या सॉल्व? नहीं होगा शायद. सो गैमा ऑफ 1 बाय 4 ये नहीं होगा सॉल्व. इसको ऐसे रखना होगा. सो ओके, नहीं होगा सॉल्व ना. ये समझ में आ रहा है ना आपको? इसके आगे क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी. ये नहीं होगा ये सॉल्व. गैमा 1 बाय 4 तो नहीं होता. सो लेट मी कीप दिस एज इट इज. इसको इतना ही रखना है.
दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको MCQ में भी इतना ही आएगा, ठीक है। ये होगा सॉल्व, आई थिंक वी नीड वन मोर टर्म, ठीक है। अभी के लिए इसको रख देते देखना पड़ेगा अगर कुछ इसमें कैलकुलेशन हो रही तो। 1/4 को अगर मैं एक कर भी देता हूँ ना, n-1 सो -3/4, ओके। है कहीं पे ना कहीं पे इसको एडजस्ट किया है मैंने, ओके। विल गिव यू दैट एग्जांपल सेपरेटली। आई थिंक नाउ ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 में होमवर्क के लिए ऐड कर देता हूँ, लाइक से 0 to pi, यू कैन ट्राई दिस √π/2, π/2 √cot थीटा d थीटा, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। 0 to 4 है ना, √cos थीटा, बहुत सारे एग्जाम्पल है इस पर, ये भी आप अभी सॉल्व कर सकते हो, ओके। दिस यू कैन ट्राई, ओके। टाइम है और है, एंड नाउ जस्ट लेट मी गिव दिस लास्ट टाइप। अब ये डेफिनेशन नहीं है या, ठीक है, डेफिनेशन भी बोल ही सकते हैं इसको, क्या करें अभी इसको, डेफिनेशन 3 तक हो गया ना, टाइप 4 बोल देता हूँ मैं, चलो टाइप 4। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आर द स्टैंडर्ड डेफिनेशंस, ठीक है। बट दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन, और डेफिनेशन नहीं बोल रहा क्योंकि बिकॉज जनरली वी विल नॉट कंसिडर दिस एज द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, ओके। सो दिस इज द फॉर्म इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b x minus a raised to some power y की सारा b minus x raised to some power dx। अभी ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना होगा, ओके। ये जो एग्जाम्पल है जो अभी मैंने आपके मतलब स्क्रीन पे जो लिखा है, दिस एग्जाम्पल कैन बी सॉल्व यूजिंग बीटा फंक्शन, ओके। और आप इसको इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट दिस एग्जाम्पल इनटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x raised to m-1 into 1 minus x raised to n-1 dx, या जो भी पावर m-1 रहेगी, m रहेगी, तो जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही लिख लेता हूँ। इट्स बेटर टू कंसिडर लाइक दिस, एंड दैट गिव्स यू बीटा m+1, n+1, ठीक है। सो टेल मी हाउ यू डू दिस, हाउ यू कन्वर्ट दिस गिवन इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ दिस। थिंक ऑन दिस एंड आइडेंटिफाई अ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन फॉर x। क्या करना होगा आपको, मैंने क्लियर किया है। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाई करते हो ना, जैसे अभी मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, इस इंटीग्रल को, ओके। तो यहाँ पे x के लिमिट्स क्या है, ओरिजिनल लिमिट्स क्या है x के, यहाँ पे x के ओरिजिनल लिमिट क्या है, 0 to 1। नहीं इसमें तो कन्वर्ट करना है ना, ओके। जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन लेट मी राइट A to B। इन टर्म्स ऑफ t लिख लेता हूँ, तो वो सेम दिखाई नहीं देगा आपको। हाँ, लेट मी राइट t, लेट मी राइट, हाँ अभी x के लिमिट क्या है, ये तो गिवन प्रॉब्लम है। x के लिमिट क्या है, a to b, ओके। अभी मुझे एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन चाहिए, ओके, विच गिव्स मी द लिमिट्स ऑफ t एज 0 to 1, ओके। थिंक ऑन दिस, टेल मी अ सब्स्टिट्यूशन विच गिव्स मी दिस लिमिट, तो ही इन दैट केस ओनली आई कैन कन्वर्ट दिस गिवन इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन, करेक्ट। So now this is the open problem and we'll discuss its solution in next lecture, ठीक है। So please think on this, how you convert this integral into this form। तो आप देखो और कैसे 0 to 1 में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, थिंक ऑन दैट पार्ट, ठीक है। मैं बस एक हिंट देता हूँ, इस टर्म को t⁻m में एडजस्ट करने की कोशिश करो, ये ऑटोमेटिक उसमें जाएगा, ठीक है। ओके, सो हियर विल स्टॉप टुडे। Any doubt from your side? बोलो।